valence electron pair repulsion theory or VSEPR theory. This theory was given by Paul and Sidgwick in 1924 and predicts the shape of covalent molecules, which is based on the repulsive interaction of the electron pairs present in the valence shell of a central atom. However, this theory was later on redefined and further developed by Nyholm and Gillespie in 1957. गिलेस्पी और नाइहोम ने इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स किए simply to predict the shape and geometry of the covalent molecules. In case of covalent molecules, the central atom is surrounded by the surrounding atoms. Now, postulates of VSEPR. The various assumptions or the postulates of the VSEPR theory are first one is the atoms in a molecule are held together by pairs of electrons known as bonding pairs. Postulate number 2, some atoms within a molecule may have pairs of electrons that are not involved in bonding. They are called lone pairs. So that means in case of an covalent molecule, the central atom has two types of electron pairs. One is bond pairs, next is lone pairs. Bond pairs वो वाले electrons होते हैं that are actually involved in the bonding, while as lone pairs are वो electrons होते हैं which are not involved in the bonding but are present on a central atom as a non-bonding electron pair. Postulate number 3. As the electron pairs are negatively charged, they repel each other. On each atom, the electron pairs adopt position as far as apart from one another as possible, simply to avoid the maximum repulsion between the electron pairs, that is between the lone pairs, between the lone pair and bond pair. Postulate number चौथा postulate. Actually, the shape of the molecule depends upon these electron pairs, that is bonded and non-bonded electron pairs present on the central atom. That means the electron pairs are arranged around the central atom in such a way so that the repulsion between the electron pairs is minimum. Now, postulate 5th, molecules having only bond pairs or bonded electron pairs have a regular shape, while as those having both bond pairs as well as lone pairs have a distorted shape. So we have two types of categories here. One is the molecules having only bonded electron pairs have a regular shape, while as those having bond pairs as well as lone pairs have a distorted or irregular shape. Now let us start with the molecules having only bonded electron pairs. First category. Now let us consider the simplest molecule, that is AB2 type molecule. अब यहाँ पर हम इसका एक टेबल बना देंगे. कॉलम फर्स्ट में आप सीरियल नंबर लिखो, दूसरा कॉलम उसमें मॉलिक्यूल टाइप, तीसरे में मैंने ज्योमेट्री और शेप और फिर एग्जांपल्स है. लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स है ओनली, वी हैव ओनली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर्स नहीं है, तो हम कॉलम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल टाइप लिखना. मॉलिक्यूल टाइप हम यहाँ पर लिखेंगे. मॉलिक्यूल टाइप जैसे मैंने यहाँ पर जो मॉलिक्यूल या AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, कॉलम में AB2 टाइप, लास्ट में एग्जांपल हम ले लेंगे. तो फर्स्ट सीरियल नंबर फर्स्ट पर लेट्स कंसिडर दिस वन AB2 टाइप मॉलिक्यूल. तो अब इसमें कितने सराउंडिंग एटम्स है? 2. दैट मीन्स वी हैव 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स. तो अब ये वाला AB2 टाइप मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे, इसकी जो शेप होती है दैट इज लीनियर,
और लीनियर में आपको पता है कि वी हैव जो जो दो सराउंडिंग एटम्स लोन पेयर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, दे आर एट एन एंगल ऑफ 180। क्योंकि 180 पर क्यों नहीं है, 90 या 60 पर क्यों नहीं है, वहाँ 180 पर मिनिमम रिपल्शन है। और इसके लिए एग्जाम्पल्स जो होंगी दैट इज़ BCl2, BeH2, MgCl2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्स्ट्रा। क्योंकि अगर हम इस पर देखेंगे कि जो बॉन्ड 180 है, 190 अगर हम वो वाली शेप बना देंगे तो उसमें ज़्यादा रिपल्शन होगी किसके दरमियान, बॉन्डेड, दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के। सो दैट इज़ वाई कि बॉन्ड एंगल इसमें है 180। नेक्स्ट टाइप है AB3 टाइप मॉलिक्यूल। अब इसमें कितने, वी हैव 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और अगर इसकी शेप हम देखेंगे AB3, यूजुअली these 3 surrounding atoms are present on the corners of a trigonal. This is why the shape is trigonal planar. और अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि इसकी लास्ट शेल में, सेंट्रल एटम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है। तो उसकी वजह से जो एग्जाम्पल्स होगी वो कहाँ से होगी, बोरॉन फैमिली से इसके एग्जाम्पल्स होंगे। BCl3, बोरॉन हाइड्रोक्साइड, या इसी तरह हम एक और BeH3 भी इसकी एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो बोरॉन, चूँकि बोरॉन में अल्मोनियम भी है इस फैमिली में, दैट इज़ वाई हमें एक और एग्जांपल जो होगी दैट इज़ AlCl3 एक्स्ट्रा। हाँ, नेक्स्ट वन इज़ AB4 टाइप मॉलिक्यूल, जिसमें 4 सराउंडिंग एटम्स होंगे और कोई भी लोन पेयर नहीं होगी, दैट मीन्स वी हैव 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब 4 एटम्स को अरेंज करना है अराउंड द सेंट्रल एटम। इसकी जो शेप होती है दैट इज़ टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी, और जो बॉन्ड एंगल होता है इसमें दैट इज़ 10928 मिनट्स। अब चूँकि वी हैव 4 सराउंडिंग एटम्स, दे आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम, तो उसकी वजह से जो शेप है वो टेट्राहेड्रल। और जो इसके एग्जांपल्स हैं वो कार्बन फैमिली से आपको मिलेंगे। सो सिंपल इस एग्जांपल होगी CH4 होगी, या सिलिकॉन की एग्जांपल होगी SiH4, या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, या CCl4 एक्सेट्रा। कोई भी आप एग्जांपल ले लो जिसमें ये कार्बन वाली फैमिली की एग्जांपल आपको मिलेगी। तो इसकी शेप जो है, अभी हम मॉडल्स पर भी इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज AB5। तो AB5 में वी हैव 5 सराउंडिंग एटम्स, तो उसका दैट मीन्स वी हैव 5 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और अगर हम इसकी शेप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो शेप होती है दैट इज़ TBP स्टैंड्स फॉर ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। तो इसमें क्या होती है, ट्राइगोनल 3 आर प्रेजेंट ऑन 1 प्लेन, और जो 2 होते दैट इज़ एबो और बिलो वाला जो एटम होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द एबो एंड बिलो द प्लेन, और दे आर नोन एज एक्शियल बॉन्ड्स। और जो 3 रहते हैं ट्राइंगल में दे आर नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और इनमें जो बॉन्ड एंगल रहता है, अगर आप बॉन्ड एंगल देखोगे बिटवीन दीज 3 जो एक ही में प्रेजेंट होते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ 120। और जो एक्शियल बॉन्ड का एंगल होता है किसके साथ, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ, वो होता है 90 डिग्री। अभी आपको ये दिखेगा कि ये 90 से कम है, लेकिन अभी जब हम मॉडल यूज़ करेंगे तो उस पर ये पता चलेगा कि ये क्यों है 90 डिग्री। सो दैट इज़ वाई इसकी जो शेप होती है TBP, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। जो एक्शियल बॉन्ड्स होते दे आर a bit lengthy than equatorial bonds because of the bond pair repulsion की वजह से, यही वजह है कि इसकी शेप TBP बन जाती है, या ये पेंटागोनल इसमें नहीं बनेगी। तो इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल देखने के लिए दैट मीन्स वही इसकी एग्जाम्पल होगी जिसकी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि तब भी पॉसिबल है कि ये कितने बॉन्ड्स बना देगा, 5 बॉन्ड्स बना सकते हैं। सो दैट इज़ वाई इसके एग्जाम्पल है कौन सी, नाइट्रोजन फैमिली। लेकिन नाइट्रोजन नहीं है एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन के पास D सबशेल नहीं है, और यही वजह है कि फास्फोरस की वाले कंपाउंड इसके एग्जाम्पल्स है।
नेक्स्ट वाला जो है AB6 टाइप, इसमें वी हैव 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसमें हमें 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगी। अच्छा, बट लोन पेयर्स इनमें नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें लोन पेयर्स नहीं है, ओनली बॉन्ड पेयर्स है, दैट इज़ वाई कि इसकी शेप रेगुलर होती है। नाउ 6 एटम्स, इफ वी हैव टू अरेंज 6 एटम्स अराउंड इन सेंट्रल एटम, दैट मीन्स हमें 6 अरेंज करने हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द। तो वी हैव ये वाली शेप है, वन इज़ एबो और एक बिलो द प्लेन है। और ये जो शेप होती है, ये कौन सी शेप है आपको पता है कुछ? नहीं, ये ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होती है। सो शेप इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप है इसकी। और जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल इसमें 90 डिग्री होता है। तो आपको लग रहा है कि कम है, लेकिन अभी मॉडल से आपको पता चलेगा कि ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो दो एटम्स होते हैं, एक अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स हमें कहाँ से मिलेंगे? वही एटम्स इसके लिए एग्जाम्पल बनेंगे जिसके लास्ट शेल में अगर हम देखेंगे कि वी मस्ट हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो तब भी जाके ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें मिल रहे हैं कि किसकी लास्ट शेल में प्रेजेंट है, तो वो हमें किस में है? ऑक्सीजन वाली फैमिली में है। लेकिन ऑक्सीजन इटसेल्फ इसके पास अगेन डी सब शेल नहीं है, सो दैट इज़ वाई इसके बाद जो आ रहा है सल्फर, सल्फर इसके लिए एग्जाम्पल हो सकती है SF6, SCl6 हो सकती है। या इसी तरह सल्फर के बाद एक और आता है, सल्फर के बाद कौन सा आता है? सेलेनियम होता है। So these will form 6 bonds. Actually these are the exceptional or exceptions of किसके? ऑक्टेट रूल के। सो ये मॉलिक्यूल है AB6 टाइप का, जिसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है और शेप जो है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और एग्जाम्पल मैंने बताया था इसमें कि सल्फर के कंपाउंड जो होंगे दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस AB6 टाइप मॉलिक्यूल। और शेप मैंने यही बताया कि इसकी रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप इन सेंस की इसकी शेप जो है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और इसमें अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन हो वो दैट इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, और यही वजह है कि शेप जो है वो रेगुलर है। बट अगर लोन पेयर्स भी होंगे और बॉन्ड पेयर्स भी होंगे, उसकी वजह से शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज मॉलिक्यूल्स or ions having both bond pairs and lone pairs and their shape is, हाँ मैंने बताया अभी जो शेप उनकी होती है, उन मॉलिक्यूल्स कोवलेंट मॉलिक्यूल जिनके पास बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स होते हैं, उनकी शेप इरेगुलर होती है और डिस्टॉर्टेड शेप होती है, और जियोमेट्री उनकी जो होती है दैट इज डिस्टॉर्टेड, उनकी ज्योमेट्री होती है। तो ज्योमेट्री क्या होती है? द डेफिनेट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम्स इन कोवलेंट मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम इसके लिए भी उसी तरह से एग्जांपल ले लेंगे, बट बिफोर दैट वी विल, हाँ यहाँ पर एक टेबल बना देंगे, एक टेबल जैसे हमने जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसके लिए बनाया था। अब लिखो सीरियल नंबर, अगेन वही है, मॉलिक्यूल टाइप, बॉन्ड पेयर्स, देन लोन पेयर्स है, और लोन पेयर्स, और इसके बाद आ जाएगा लोन पेयर्स के बाद, हाँ हमने जियोमेट्री और शेप या स्ट्रक्चर अब लिखो, फिर लास्ट में आप एग्जांपल्स लिखो। और ये लेकिन इसमें दोनों है, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन होती है उसकी वजह से शेप डिस्टॉर्ट होती है, और जो रिपल्शन होती है वो ज़्यादा होती है लोन पेयर्स, और लोन पेयर इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर। So lone pair is stronger than lone pair bond pair, which in turn is weaker than, which in turn is stronger than lone pair bond pair repulsion. So that means the order जो होगा repulsion का lone pair के lone pair दरमियान ज़्यादा है, और bond pair lone pair में कम होती है, लेकिन लीस्ट होती है bond pair। फर्स्ट वन, अब एक एग्जाम्पल ले लो अभी जो हमने डिस्कस किए थे AB2 टाइप, लेकिन AB2 टाइप अब इसमें क्या होगा, एक ना एक लोन पेयर होगी से। अब हम कोई एक एग्जांपल ले लेंगे, इसमें क्या है,
लोन पेयर और लोन पेयर मैंने एलपी से लिखा ना, अब मैंने इसमें ई भी डाला है, ई मीन्स लोन पेयर, यहाँ पर इजी होगा बनाने में, सेटिस्फाई। तो अब इसमें कितने हैं, वी हैव 2 बॉन्डेड एटम्स, सो 2 बॉन्ड पेयर्स, लेकिन ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर तो एक है। सो अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल की शेप देखेंगे, किसकी, AB2E टाइप, AB2E टाइप मीन्स वी हैव 2 सराउंडिंग एटम्स एंड 1 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। अब ये कैसे इनको अरेंज करेंगे, क्योंकि लोन पेयर विल रिपल स्ट्रॉन्गली टू द बॉन्ड पेयर। सो अगर हम शेप इसकी देखेंगे, सेंट्रल एटम ए है, तो इसके इर्द गिर्द हमें 2 जो सराउंडिंग एटम्स हैं, अगर हम इसके एग्जाम्पल कोई देखेंगे तो इसके लिए ये वाली जो शेप हम देखेंगे, ये कौन सी शेप होगी, बेंट होगी, लीनियर नहीं होगी, क्योंकि लोन पेयर विल रिपल स्ट्रॉन्गली टू द बॉन्ड पेयर। तो उसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल होगा इन दो के दरमियान, दैट विल डिक्रीज, और जो शेप होगी दैट इज बेंट शेप्ड, ये बेंट शेप्ड होगा, और बेंट शेप्ड होगा ये, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर है, लोन पेयर रिपेल कर रहा है, बॉन्ड पेयर्स जो 2 है उनको रिपेल कर रहा है। अगर हम इसकी एग्जांपल अगर आपको देखनी होगी, वो होगी इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड एंड O3 ओजोन, ये इसकी शेप है। और बॉन्ड एंगल की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड है ये वाला, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है। और इसी तरह अगर आप ओजोन का देखोगे कि ओजोन का भी इसी तरह स्ट्रक्चर है। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है AB2E वाला, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स है और एक लोन पेयर है। और शेप मैंने बताया कि ये बेंट शेप्ड होता है। बेंट क्यों होता है, लीनियर क्यों नहीं होता, अभी हमने AB2 वाला देखा वो लीनियर था, लेकिन यहाँ पर बेंट है। बेंट इसीलिए लोन पेयर है, लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर्स, सो लोन पेयर विल रिपेल स्ट्रांगली टू द बॉन्ड पेयर, बिकॉज ऑफ दैट जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज होगा, और शेप जो होगी, शेप विल चेंज, और जो शेप ज्योमेट्री होगी इस मॉलिक्यूल की वो बेंट होगी, बट लीनियर नहीं होगी। तो एग्जाम्पल मैंने इसमें बता दिया कि सल्फर डाइऑक्साइड है और O3 है, ओजोन इसकी एग्जाम्पल है। ये रहा AB2E वाला मॉलिक्यूल, जिसमें एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है। नाउ द सेकंड केस इज, इसमें 2 लोन पेयर्स जो हो सकते हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स हो सकते। तो उसका मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल में हमें कितने हैं, 2 सराउंडिंग एटम्स हैं, दैट मीन्स वी हैव 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन किस पर, सेंट्रल एटम पर। सो वी हैव 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। अगर हम लेकिन इसकी शेप देखेंगे, क्योंकि 2 ही है, लेकिन इससे पहले एक लोन पेयर था, अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, वी हैव वाटर मॉलिक्यूल, इसके एग्जाम्पल है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें एक एग्जाम्पल है। और अगर हम इसकी शेप देखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप है, इसमें क्या है, वी हैव ऑक्सीजन, यहाँ पर सेंट्रल एटम है, उसके पास 2 लोन पेयर्स है, और हाइड्रोजन एटम्स 2 है, दे आर बॉन्ड पेयर्स और बॉन्डेड और सराउंडिंग एटम्स है। तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी लीनियर शेप नहीं हो सकती, क्योंकि 2 एटम्स है, लीनियर होगी वो नहीं है। यहाँ पर अगेन वी हैव वी शेप्ड और बेंट है, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर्स है। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन भी है, विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्शन, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, दैट इज़ वीकेस्ट इन नेचर। तो अगर हम शेप इसकी बनाएंगे, ये इस तरह है, वी शेप्ड मैंने बना दी है।
तो इसमें जो लोन पेयर जो बॉन्ड एंगल अगर हम देखेंगे, बॉन्ड एंगल चूँकि लीनियर में 180 होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखेंगे इसमें होना चाहिए 109 बॉन्ड एंगल, बट 109 नहीं है, क्योंकि हमने देखा इसमें जो बॉन्ड एंगल है बिकॉज ऑफ वन लोन पेयर बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज बाय एटलीस्ट 2 डिग्री, और यही वजह है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 104.5, so the bond angle is decreased by at least 4.5 डिग्री, क्योंकि वी हैव टू लोन पेयर्स, मैंने बताया कि एक से जो बॉन्ड एंगल है एटलीस्ट डिक्रीज बाय 2 डिग्री। और मैंने अभी AB2 में आपको बॉन्ड एंगल मैंने यहाँ पर गलत लिखा था, ये बॉन्ड एंगल जो है बिकॉज ये 118 डिग्री है, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर यहाँ पर भी जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा, दैट विल आल्सो डिक्रीज बाय 2 डिग्री दिस लोन पेयर। तो एग्जांपल मैंने इसमें बता दें कि वाटर वही हमने ना एग्जांपल, या इसी के साथ अगर हम देखेंगे H2SE H2S है, या इस और एक एग्जांपल SeH2 है, ये भी इसके एग्जांपल है। नाउ अब हम एक और केस की तरफ आ जाएंगे, ना द सीरियल नंबर 3 हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप ये आपने लिखा है यहाँ तक? हाँ ठीक है। नाउ दे अभी हमने AB2 जो है ये वाले मॉलिक्यूल डिस्कस किए, उनमें जो लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों थे, जो शेप आपने देखा वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो वहाँ हमने पहले जो कैटेगरी थी उसमें आपने जो ये जो देखी है शेप। नाउ द थर्ड वन इज़ AB3E वाला। AB3E इसमें क्या है, वी हैव 3 bond pairs and 1 lone pairs, that means in general we have 3 bond pairs और एक लोन पेयर है। तो अभी आपने देखा कि इन टोटल वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो आपने देखी जब 4 थी उसमें आपने देखी थी कार्बन वाली एग्जाम्पल, तो उसकी जो शेप थी वो टेट्राहेड्रल थी, लेकिन वहाँ पर हर एक रिपल्शन जो थी बॉन्ड पेयर रिपल्शन थी, वहाँ पर खाली लोन पेयर या बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं थी, तो शेप जो थी रेगुलर टेट्राहेड्रल बन रही थी। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे AB3E वाला ये वाला केस देखेंगे, क्योंकि इसमें लोन पेयर है, जो शेप टेट्राहेड्रल बनती थी वो अब नहीं होगी टेट्राहेड्रल, वो चेंज हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी और इरेगुलर शेप बनेगी, इरेगुलर शेप होगी इसकी। तो वो हम देखेंगे। लेटेस्ट ये A इज ए सेंट्रल एटम और इसके इर्द गिर्द जो है हमें कितने सराउंडिंग एटम्स में 3 हैं और एक लोन पेयर है। लोन पेयर आप देखो ये वाला, तो ये वाला केस अगर आप देखोगे कि किस में है, इन जनरल अगर हम देखेंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बन रहे हैं। सो दिस इज सराउंडिंग एटम और ये यहाँ पर लोन पेयर है, और जो शेप है जिस जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल शेप जैसे बनती थी उसी तरह है, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड होती है। तो दैट इज़ वाई इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, पिरामिडल होती है, पिरामिडल शेप होती है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर होती है। लोन पेयर की वजह से जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल को क्या होगा, कोई बता सकता है? हाँ, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर है, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर बाय 1 जो एक लोन पेयर जब होगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज बाय एटलीस्ट 2 डिग्री। तो इंस्टेड ऑफ टेट्राहेड्रल में आपने देखा था 109 है, लेकिन यहाँ पर 107 होगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और अगर हम एग्जांपल हमने अभी नहीं मैंने बताई, लेकिन जो शेप याद रखो आप, इसकी पिरामिडल शेप होती है, टेट्राहेड्रल नहीं होती है जब एक लोन पेयर होगी। तो शेप अगर हम इसकी देखेंगे वो आपको पता है, अमोनिया आपको याद होगा NH3, तो NH3 की जो शेप होती है दैट इज़ पिरामिडल इन शेप। या इसी के तरफ PH3 फास्फोरस हाइड्राइड भी है एक, और PCl3 और NCl3 ये इसके एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इन जनरल वी हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, नाइट्रोजन के पास 5 है, और जो सराउंडिंग एटम्स है दे आर डोनेटिंग 3, सो इन जनरल वी हैव टोटल ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था कौन सा, AB3E वाला केस है। लेकिन अगर हम इसमें अभी एक और एग्जांपल अगर इसकी देखेंगे, इसमें ये भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ है ना बॉन्ड पेयर लोन पेयर्स 2 होंगे। ये वाला आप ज़रा देखो, ये मॉडल पर इसमें हो सकते हैं कि 2 लोन पेयर्स होंगे और 2 ही क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स AB2
E2 वाला जो मैंने अभी बताया था, वाटर मॉलिक्यूल की शेप है वहाँ पर वी शेप्ड है, वो वाला मैंने बताया, 2 लोन पेयर्स है उसकी वजह से ई शेप है। लेकिन AB3 ई वाली शेप जो मैंने NH3 में बताई, इसमें क्या है, एक ही लोन पेयर है और पिरामिडल शेप क्यों है? लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्योंकि ये दे आर रिपेलिंग टू द बॉन्ड पेयर स्ट्रांगली देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यही वजह है कि ये पिरामिडल शेप होते हैं। आप ज़रा ये देखो, इसकी शेप जो 3 होते हैं ये वाले सराउंडिंग एटम्स है, द 3 सराउंडिंग एटम्स आर अरेंज्ड ऑन द 3 कॉर्नर्स ऑफ इन अ ट्राइंगल, और जो लोन पेयर होती है वो अबव द प्लेन होती है, दैट इज़ वाई इसकी शेप पिरामिडल होती है। नेक्स्ट वाला अगर हम केस देखेंगे वो कौन सा है, AB3E2। अब इसमें क्या है, ये भी चांसेस है कि वी हैव 3 सराउंडिंग एटम्स बट 2 लोन पेयर्स, सो वी हैव कितने होंगे 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स। सो टोटल में हमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अगर हमको 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एडजस्ट करने हैं अराउंड ए सेंट्रल एटम, तो हम कैसे इनको करेंगे? अभी आपने देखा था 5 जब होती थी नॉर्मल शेप होती थी मॉलिक्यूल जिनमें क्या थी, बॉन्ड पेयर्स खाली, उसकी शेप जो थी वो TBP थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था, और बॉन्ड एंगल जो 3 एटम्स प्लेन में थे, ट्राइगोनल प्लेनर जो 3 होते हैं उनमें जो बॉन्ड एंगल था वो 120 था। लेकिन जो एक्शियल 2 बॉन्ड्स थे उनका जो बॉन्ड एंगल था इक्विटोरियल के साथ वो था 90। तो उसमें क्या थे, लेंथी 2 बॉन्ड्स थे, एक्शियल जो बॉन्ड्स है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। बट यहाँ पर जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड होगी। वो कैसे, वो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर्स वो कहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर ही हम एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर लोन पेयर रिपल्शंस कम होंगे या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस कम होंगे, तो उसी के हिसाब से जो शेप है वो शेप अटेन कर सकता है। क्योंकि ये जब शेप अटेन करेगा उसकी वजह से करेगा कि जब लोन पेयर्स होंगे वो फार अवे होंगे, इसकी वजह से जो रिपल्शन होगी वो कम होगी, तो उसी टाइम मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल बनेगा। लेटेस्ट अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि लोन पेयर जो है वो हम अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन डाल देंगे पहले वाले केस में, और हम यहाँ पर देखेंगे कि लोन पेयर्स रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है तो कितने हैं, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो भी हम देखेंगे कि कितने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखेंगे कि वो लोन पेयर रिपल्शन अगर हम यहाँ देखेंगे वो नहीं है, क्यों, दे आर एट एन एंगल ऑफ 180, और लेकिन जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनमें 120 है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन है, बट कितने हैं, वी हैव 6। एबो वाला वन विच इज़ एबो द प्लेन लोन पेयर वो रिपल करेंगे, तीनों जो बॉन्ड पेयर्स हैं सराउंडिंग एटम्स हैं उनको रिपल करेंगे, सो वी हैव 3। और बिकॉज ऑफ जो डाउन द प्लेन है या बिलो द प्लेन है वो भी तीनों को रिपल करेंगे, तो उसकी वजह से भी 3 होंगे, सो वी हैव टोटल 6 रिपल्शंस, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। ये पहला केस है, हमने इसमें एक्चुअल पोजीशंस पर लोन पेयर डाले थे। लेकिन अगर हम एक और चेक करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, वी विल पुट द लोन पेयर्स ऑन, कहाँ पर करेंगे, ये हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर डाल देंगे। इसे यहाँ पर हमने ये इक्वेटोरियल पोजीशन में डाल देंगे, और एक बॉन्डेड पेयर है और जो 2 बॉन्डेड पेयर है दे आर प्रेजेंट ऑन अबव एंड बिलो द प्लेन। तो इसमें आप देखो जो लोन पेयर है दे आर एट एन एंगल ऑफ 120, तो 100 तक जो होती है रिपल्शन होती है, 100 अप टू 90 to 100, इसके बाद कम हो जाती है रिपल्शन 90 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर 120 पर है वो तो रिपल्शन नहीं होगी लोन पेयर, बट यहाँ पर अगर होगी ये वाले हम देखेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये रिपल्शन नहीं होगी, अगेन ये 120 पर है। तो अगर रिपल्शन होगी तो वो कौन सी होंगी, वो यहाँ पर होगी, वी हैव लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस होगी, बट कितने होंगी, 4 होंगी। जो लोन पेयर है 2 लोन पेयर दोनों जो एक्चुअल बॉन्ड्स उनको रिपल करेंगे दोनों लोन पेयर्स, तो उसकी वजह से 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हो सकते हैं। तो और साथ ही अगर हम ये भी देखेंगे कि जो ये लोन पेयर ये वाली, हाँ यहाँ पर दे आर एट एन एंगल ऑफ 120 है, 120 डिग्री एंगल है, और दैट मीन्स जो रिपल्शन होगी वो मिनिमम होगी, वो मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि दे आर एट एन एंगल ऑफ 120।
तो उसकी वजह से बेटर ये है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे लोन पेयर्स आर फार अवे तो रिपल नहीं करेंगे। और दूसरा अगर हम देखेंगे वो ये है कि ये जो बॉन्ड पेयर है ये वाली, ये बॉन्ड पेयर्स वहाँ पर रिपल्शन होंगी। जो एक अबो द प्लेन है और एक नीचे बिलो द प्लेन है, दे विल रिपल विथ ईच अदर। तो दो हमें क्या होंगे, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बट टोटल में हमें 6 होंगे, यहाँ भी 6 होंगे, यहाँ भी 6 होंगे। लेकिन वहाँ पर इस वाले में केस में हमें 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगे और वहाँ पर 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगे। और यहाँ पर हमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो दैट इज़ वाई कि ये वाला केस जो है इसमें अगर हम देखें ये स्टेबल केस है, क्योंकि रिपल्शन कम है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एज कम्पेयर विद द फर्स्ट वन। सो यही वजह है कि जो शेप होगी वो ये यहाँ पर है, ये जो शेप है इस वाले केस में जिसमें 2 क्या है बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, वही इसकी शेप होगी, ना कि जो फर्स्ट हमने ड्रा की। और अब अगर हम इसकी शेप देखेंगे तो वो क्या होती है, शेप इज़, ये याद रखना, टी शेपेड होता है। ये लोन पेयर्स यूजुअली कंसिडर नहीं होते हैं शेप डिटरमाइन करने में। सो दैट इज़ वाई कि जो शेप होगी वो टी शेपेड। ये वाला आप ज़रा देखो मॉडल पर, ये आपको दिख रहा है कैसे होते हैं ये लोन पेयर्स। अब देखो जो 3 ये होते हैं बॉन्ड पेयर्स, दे आर जस्ट लुकिंग लाइक अ टी। और जो लोन पेयर्स 2 हैं वो इसमें नहीं हम कंसिडर करते हैं शेप कैलकुलेट करने में। सो दैट इज़ वाई ये दिस इज़ लुक लाइक टी शेप्ड। और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमें लोन पेयर्स है और उस पहले वाले में हमें लोन पेयर जो थे वो एक्सल पोजीशंस पर थे। सो यही वजह है कि इसकी शेप कौन सी है, टी शेप्ड है। लेकिन अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स कहाँ से हमें मिलेंगे, आप ज़रा इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। वी हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव 3 + 2, वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके लास्ट शेल में। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे वो कहाँ से, वो वाले एग्जाम्पल हमें मिलेंगे। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखोगे उसके लिए आपको करना क्या है, सो ये 3 एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, 7 इसके वैलेंस शेल में, सो 10। सो ये हेलोजन फैमिली से इसके एग्जाम्पल है। ClF3 एक एग्जाम्पल है, ये इसकी एग्जाम्पल है। और बाकी भी होंगे जहाँ पर ये इसकी एग्जाम्पल्स बनेंगी। BrF3 एक और एग्जाम्पल है इसकी। नेक्स्ट केस जो होगा AB4E1, इसमें एक लोन पेयर है और 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर सराउंडिंग एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। तो अब इसमें कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स 4 है, लोन पेयर 1 है। तो अगर हम इसकी शेप जो है, शेप देखेंगे वो शेप क्या होगी इसमें, चूँकि आपको पता है 4+1 वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, TBP होनी चाहिए जैसे पहले में हमने नॉर्मल शेप बताई। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर से बट एक लोन पेयर इसमें है। तो जो शेप होगी वो ये नहीं हो सकती है TBP, यहाँ पर डिस्टॉर्टेड शेप होगी क्योंकि वी हैव 1 लोन पेयर इज़ देयर। सो बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ये जो शेप होगी वो चेंज होगी, डिस्टॉर्ट होगी। तो जो उसकी वजह से शेप और बॉन्ड एंगल दोनों चेंज हो जाएंगे। और यही वजह है जो इसकी शेप अगर हम देखेंगे वो क्या होती है, सीसा एक शेप है, वो इसकी शेप होती है। ज़रा हम पहले ये बना देंगे तो उसके बाद आप देखो कि बॉन्ड एंगल और शेप इसमें क्या होता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो अलग होती है और यही वजह है कि द शेप इज़ कौन सी, सीसा। हालांकि होनी चाहिए थी TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन वो नहीं है। शेप जो है वो कौन सी है, सीसा शेप्ड है ये। तो अगर हम इसकी एग्जांपल अगर आपको देखनी होगी, सो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगेन इसमें हैं बट वी हैव 4। ये देखो, हाँ मॉडल पर ये वाला आप देखो, इसमें कितने, एक लोन पेयर है, 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। तो ये आप ज़रा देखो, इसमें एक लोन पेयर अलग ऊपर है बुध प्लान और बाकी ये
4 सराउंडिंग एटम्स है, दे आर एडजस्टेड। 3 इसमें क्या है, ऑन द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, और जो लोन पेयर वो अबो द प्लेन ही होती है। सो बिकॉज ऑफ दिस जो शेप होगी वो सीसा होगी। और अगर हम इसका जो बॉन्ड एंगल अगर आप देखोगे, बॉन्ड एंगल क्या होगा इसमें, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इसमें एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो मैंने पहले ही बता दिया कि द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज बाय 2 डिग्री। अगर एक लोन पेयर होगा तो उसकी वजह से आपको याद ही है जो बॉन्ड एंगल हो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम एग्जांपल इसकी देखेंगे SF4, तो आप देखो SF4 में भी वही 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, एक लोन पेयर है, 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। तो अगर आप और एग्जांपल इसमें रखना चाहोगे तो कौन सी एग्जांपल है, सल्फ़र के जो कंपाउंड्स, जैसे सल्फ़र और कंपाउंड्स बने SCl4, वो भी इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट केस जो होगा इसमें वो होगा AB4E2 वाला, क्योंकि अब 4 होंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स होंगे। सो वी हैव 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर्स। और अब अगर ये वाला आप ज़रा देखो, वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन टोटल। तो उसकी वजह से 6 जब होती थी, पहले वाले केस जो हमने पहली कैटेगरी पढ़ी थी उसमें जो शेप होती थी वो ऑक्टाहेड्रल होती थी शेप उसकी, और जो बॉन्ड एंगल होता था वो 90 डिग्री होता था। लेकिन बट अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें 2 लोन पेयर्स है। बिकॉज ऑफ दीज 2 लोन पेयर्स द शेप विल नॉट बी ऑक्टाहेड्रल, दैट विल बी डिस्टॉर्टेड नाउ। द शेप और इसकी होगी वो चेंज होगी, और बॉन्ड एंगल भी साथ ही चेंज होगा। ज़रा अब ये वाला देखो AB4E2 वाला, तो इसकी जो आपको मैंने पहले ही बताया शेप स्क्वायर, ये शेप जो इसकी होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। ये आप हाँ ऐसे ही बनाओ, ये स्क्वायर है। तो इसमें जो लोन पेयर्स 2 होती है, वन इज़ प्रेजेंट अबो द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है, एक अबो द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होती है इसमें कौन सी, लोन पेयर्स। और जो शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। और अगर ये आप देखोगे अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन होते हैं, यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर्स रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन यहाँ नहीं है, बिकॉज दे आर एट एन एंगल ऑफ 180। तो 180 पर जो लोन पेयर रिपल्शन विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्शन वो नहीं है यहाँ पर। बट यहाँ पर अगर है तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शंस है और बॉन्ड पेयर रिपल्शंस है। और नो डाउट द बॉन्ड एंगल विल चेंज। और अगर हम इसकी जो एग्जांपल अगर आपको देनी होगी, दैट इज़ ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड इसकी एग्जांपल एक है, ये आप याद रखो, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड एग्जांपल है। और आपने देखा था कि पहले वाली कैटेगरी जो हमने पढ़ी, मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स, उसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते तो शेप जो थी वो ऑक्टाहेड्रल थी। बट यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर शेप है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल नहीं है। तो अब ये हाँ ज़रा ये देखो, इसमें क्या है, लोन पेयर्स 2 जो है वो अब एक आपको अबो द प्लेन बनानी है और दूसरा जो है वो बिलो द प्लेन है। तो एक ही प्लेन में जो 4 एटम्स है दे आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। जो लोन पेयर्स 2 है वो एक ऊपर वाली साइड में है और नीचे वाली साइड में एक है। तो यही वजह है कि इसकी जो शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर है और ऑक्टाहेड्रल नहीं है। तो हाँ नो डाउट ये जो लोन पेयर्स है दे विल रिपेल टू द बॉन्ड पेयर को वो रिपेल करेंगे। तो ये जो जीनॉन की एग्जांपल है ये जीनॉन फ्लोराइड है, नो डाउट जीनॉन जो है इनर्ट गैस है। इनर्ट गैसेस जो ये है ये दे आर नॉट, अगर आप इनर्ट गैसेस देखोगे कि तो वो इनर्ट है, वो दे आर नॉट फॉर्मिंग द कंपाउंड, बट फ्लोरीन इज़ हाईली रिएक्टिव, सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो है जीनॉन फ्लोराइड बन रहा है। तो अब आप अगर देखोगे इसमें प्लान वाले में तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो 90, आप यहाँ पर मैंने लिखा लेकिन 90 से थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि लोन पेयर्स है। लोन पेयर्स की वजह से जो बॉन्ड पेयर्स पर रिपल्शन रहेगी तो उसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है थोड़ा चेंज हो जाएगा इसमें। ये कौन सा था, ये वाला था AB4E2 वाला मॉलिक्यूल टाइप। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे कोई और है, इसमें चांसेस है मेरे ख्याल से यहाँ एक और इसमें बनेगा, ये वाला AB5
AB5E1 इसमें एक और बनेगा ये वाला। तो इसमें क्या है, एक ही लोन पेयर है बट वी हैव 5 क्या बॉन्ड पेयर्स, और टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। और ये वाला एक इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि आपको अगेन आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यूजुअली, अगर आपने देखा होगा कि जो पहली वाली कैटेगरी है लोन पेयर्स नहीं होंगे तो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, तो उसमें भी आपने बॉन्ड एंगल देखा तो 90 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाले केस में जो शेप होगी वो क्या होगी, वो हाउ जो इसमें लोन पेयर एक है दैट प्रेजेंट, वो कहाँ पर होगी, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ये ऐसे आपको दिखेगा, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल होगा। इस अगर हम इसकी शेप देखेंगे स्क्वायर पिरामिडल होगी इसकी शेप। और जो इसमें अगर आप एग्ज़ाम्पल देखोगे तो कौन सी एग्ज़ाम्पल होगी, ClF5 होगी या BrF5, ये इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं इस वाले केस में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो अबव द प्लेन है, उसकी वजह से जो रिपल्शन होगी वो नो डाउट दे विल रिपेल टू द बॉन्ड पेयर्स। लेकिन अगर हम उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर डाल देंगे तो वहाँ पर ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगी, और जो अबव द प्लेन है वहाँ पर कम ही हो जाएगी रिपल्शन। तो यहाँ पर अगर, लेकिन एक मॉलिक्यूल्स, मैंने मॉलिक्यूल्स और आयन्स दोनों इसमें मेंशन कर दिए। लेट अस से कि अगर आपके पास NH4 आ जाएगा, NH4 चूँकि इसमें अगर आप देखोगे कि अमोनिया में एक लोन पेयर होती है लेकिन इस NH4 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसकी वजह से अगर आप इसकी शेप देखोगे वो जो अब आपने अभी अमोनिया की देखी पिरामिडल होती है वो नहीं हो सकती। यहाँ पर जो शेप होगी किसकी, अमोनियम आयन की, वो टेट्राहेड्रल होगी, जस्ट लाइक CH4 की तरह इसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी ये। मगर मैंने जो अमोनिया की NH3 की बनाई, अमोनिया की जो शेप होती है वो पिरामिडल होती है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर की वजह से, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन बट अगर यहाँ पर मैंने NH4 बनाना है, NH4 मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास थी वो किसने ली, वो हाइड्रोजन एटम ने ले ली, तो उसकी वजह से जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, वो पिरामिडल नहीं होगी जैसे कार्बन की शेप होती है। तो आयन्स में जो शेप होती है मॉलिक्यूल्स में जिनमें लोन पेयर्स होंगे और बॉन्ड पेयर्स होंगे तो उनमें डिस्टॉर्टेड शेप होगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होगी जिनमें क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा, उसमें भी शेप जो है वो शेप चेंज हो जाएगी किसके साथ, विद इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज और द पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो शेप होगी वो चेंज होगी। और यही वजह है कि NH4 की जो शेप है दैट इज़ कंपेरेबली सेम विद CH4, दैट वो टेट्राहेड्रल है किसमें। सो दिस वाज ऑल अबाउट ये था इसके मतलब इन मॉलिक्यूल से मतलब